Hello students, today we shall discuss some numerical problems based on the concept that we have already discussed in lecture 1, 2 and 3, and also we had a discussion on Ohm's law, an important law or relation which was given by Ohm. So first we start our discussion, but before that quickly I want to revise what we learned in lecture 1, 2 and 3. In lecture 1 we discussed the discovery of electricity by Benjamin Franklin. Then we discussed the charge, unit of charge, definition of charge, types of charge, transfer of charge from one surface to another surface. Then we had a discussion on properties of charge. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Then we discussed the cause of flow of charge. The flow of charge is because of the potential difference. We discussed the meaning of potential difference by giving various examples. We also derived a relation for potential difference. We also discussed the unit, SI unit of potential difference. Then we had a discussion on electric potential, its definition and unit. We also discussed the definition of 1 volt. Then after this we discussed that potential difference is the cause of flow of charge, but because of the flow of charge there is an effect in the metallic wire which is known as electric current. So we discussed the electric current. Electric current is the rate of flow of charge. Electric current is denoted by capital I. It is measured in ampere. Its SI unit is ampere. I is equal to Q upon T. Q is equal to NE. So I may be written as NE upon T. Then we also discussed the definition of 1 ampere. After definition of 1 ampere, we discussed various symbols used in this chapter, electricity, to draw various circuit diagrams. We also had a discussion on the use of ammeter and voltmeter, the difference between ammeter and voltmeter. Ammeter is a device which is connected in series in an electrical circuit, whereas voltmeter is connected in parallel in an electrical circuit. Ammeter is a low resistance device, whereas voltmeter is a high resistance device. The resistance of ideal ammeter is 0, whereas the resistance of ideal voltmeter is infinity. Using ammeter, what we can do, using ammeter we can measurement of electric current can be done. It measures, ammeter क्या करता है बेटा, measures electric current and measures electric current, whereas this voltmeter किसे measure करता है, measures voltage कहें या फिर हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहना ज़्यादा प्रॉपर है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेन टर्म है. पोटेंशियल तो हमने उसके बाद डिफाइन किया. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम वोल्टमीटर इसे किस में मेजर करेगा, वोल्ट में मेजर करेगा. एमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है, और किस में मेजर करता है, एमीटर करंट को एम्पियर में मेजर करता है. चलिए अब हम यहाँ तक जो हमने डिस्कशन किया उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. नंबर 1 मैंने एग्जाम्पल 12.1 लिया है, आपकी जो NCERT बुक है उसका एग्जाम्पल लिया है. व्हाट इज देयर इन दिस एग्जाम्पल, यू सी ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके फिलामेंट के द्वारा 10 मिनट तक के समय के लिए 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ किया जाता है. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, कि सर्किट से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा ये हमें पता करना है. तो देखिए ये बल्ब है, ये बल्ब का फिलामेंट है, और ये फिलामेंट जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो कितना ड्रॉ कर रहा है, कोई बैटरी होगी उसी से ड्रॉ कर रहा है करंट. कितना करंट ड्रॉ करता है, 0.5 एम्पियर, ये करंट का वैल्यू दे रखा है. और कितने समय तक के लिए ड्रॉ करता है, ये कितने समय तक के लिए ड्रॉ करता है, टाइम का वैल्यू दे रखा है 10 मिनट्स, टाइम का वैल्यू 10 मिनट्स. और 10 मिनट को यदि आप सेकंड में बदलोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 600 सेकंड हो जाएगा सेकंड में यदि आप लिखोगे टाइम को. तो ठीक है, आप पूछ रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा सर्किट से,
यानी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, क्यू कितना होगा ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज पर डेफिनेशन ऑफ करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आई इंटू टी आ जाएगा। आई का वैल्यू कितना है बेटा, आई का वैल्यू है 0.5 एम्पियर, ठीक है। और टी का वैल्यू कितना है 10 मिनट्स, ठीक है, कितना है 10 मिनट्स है। तो ये कितना आ जाएगा 5 कूलाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 कूलाम। कैसे जी, ये 0.5 को लिखा 5/10 और 10 को 10 ही रहने दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 कूलाम आ गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसके अलावा यदि आप इसको टाइम को क्या नाम से सेकंड्स में लेओगे, टाइम को यदि सेकंड्स में लेते हैं तो उस केस में इसको क्या लिखा जाएगा वो भी देख लेते हैं। टाइम को यदि सेकंड में लिखोगे, यदि आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि ये टाइम आपने किस में लिया है, ये मिनट में लिया है, लेकिन यदि सेकंड्स में लेओगे, इफ टी इज इक्वल टू 600 सेकेंड, यदि टाइम आपने सेकंड में लिया है तो q बराबर आई टी ये हो जाएगा, और i का वैल्यू 0.5 है और t का वैल्यू हो गया आपका 600 सेकेंड, और ये 5/10 हुआ और इंटू 600 सेकेंड हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 5 इंटू 60 ये आ गया 300 कूलाम, ये चार्ज का वैल्यू आया। तो ये आंसर वैलिड माना जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं, एक तो मिनट में टाइम को लिया तो इतना आया, ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स, ठीक है, जब 10 मिनट लिया तो ऐसा हो गया 5 कूलम आया, लेकिन टी को जब सेकंड में लेते हैं तो इतना लिया। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में दोनों नहीं बता के आने हैं, आपको ये सेकंड वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। आपको कौन सा, टाइम को आपको सेकंड में लिखना है बेटा, ठीक है, टाइम को सेकंड में लिख के सॉल्यूशन करना है 300 कूलम। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया मिनट में, ये वाला आप मिनट में जो है सॉल्यूशन है ये आपको नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए बताया है। इतना तो ज़रूर लिखना है कि आई बराबर क्यू अपॉन टी और क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, इस तरीके से लिख के आना है, और फिर आई और टी की वैल्यू लिख करके टी को सेकंड में निकालना है, टाइम को सेकंड में लिख करके। तब देखिए, जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो जैसा बोल रहा है वैसा डायग्राम बनाओ, और क्या गिवन है वो लिख लेना चाहिए। जैसे टाइम गिवन है तो टाइम हमने लिख लिया 10 मिनट, कितना हो गया सेकंड में 600 सेकंड। करंट गिवन है तो करंट लिख लिया 0.5 एम्पियर, और क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। अब ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें चार्ज भी हो, टाइम भी हो और करंट हो, तो ऐसा फॉर्मूला तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम होगा किसको मूव करने में, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम, एक 2 कूलाम चार्ज को मूव करने में, कहाँ से कहाँ, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब ये 2 पॉइंट मान लेता हूँ मैं, इन 2 पॉइंट के बीच में ये कोई वायर होगा जिससे चार्ज जा रहा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट ए और बी मान लेता हूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और कौन से चार्ज को मूव कर रहे हैं हम, 2 कूलाम चार्ज को मूव कर रहे हैं, ठीक है, 2 कूलाम चार्ज को। तो कह रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, इस 2 कूलाम चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में कितना वर्क होगा। तो इसे क्या निकालना है हमें, वर्क डन कितना होगा, ठीक है, वर्क डन निकालना है। क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है जिसको मूव कर रहे हैं, और दोनों सिरों के बीच में, 2 एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट। तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें V आ रहा है, W आ रहा है, Q आ रहा है। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, इतना होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से W क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो V कितना है बेटा 12 वोल्ट, और चार्ज कितना है 2, तो कितना आ गया 24। अब ये वर्क है, और वर्क किस में मेजर होता है, आप सब जानते हैं जूल में मेजर होता है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा 24 जूल आ जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा 24 जूल। यानी 2 कूलाम चार्ज को एंड ए से एंड बी तक ले जाने में, ऐसे एंड्स हैं ये ए और बी जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो ऐसे केस में 2 कूलाम चार्ज को इस एंड से इस एंड तक ले जाने में 24 जूल वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ गया, बड़ा आसान सा सवाल था। चलिए
अब मैंने कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी लिए हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पेज नंबर 200 पर 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पेज नंबर 200 पर ये 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, देखिए ज़रा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। सब जानते हैं, मैंने लिखवा रखा है। ए सर्किट इन विच डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, ये मैंने आपको बताया था। तो ये तो इसका जवाब हो जाएगा, लिख सकते हैं आप आराम से। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? ए सर्किट इन विच डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर को डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन मैंने आपको बता रखा है। तो 1 एम्पियर करंट कब होगा? 1 एम्पियर करंट कब होगा? आई का वैल्यू 1 एम्पियर कब होता है? जब टाइम 1 सेकेंड हो और चार्ज 1 कूलाम हो। यानी किसी वायर से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है तो उस वायर से फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन, एम्पियर की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हुई है, वहाँ से लिख लेना इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताइए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर के 1 कूलाम चार्ज बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाते हैं किसको? 1 कूलाम ऑफ चार्ज को। कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया इधर। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो कितना चार्ज बनाना है? 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, स्मॉल एन पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें चार्ज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप जानते हो ना, ये फॉर्मूला जानते हो या नहीं? Q इज इक्वल टू एन ई या प्लस माइनस एन ई हमने लिखा था। तो यहाँ तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलाम चार्ज को बनाएंगे? तो Q अपॉन ई, ये n निकालना है हमें। ठीक है, तो E का वैल्यू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप जानते होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। विद नेगेटिव साइन होता है, लेकिन हम यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए पॉजिटिव ले लिया है। समझ गए? अब इसमें इस फॉर्मूले में Q और E का वैल्यू रख दो। Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलाम। ठीक है, Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज। ठीक है, और E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करूँ तो 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा ना बेटा, और नीचे रह जाएगा 16। और 1.6 को क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ -1। इस -1 को भी ऊपर ले जाओ तो ऊपर हो जाएगा 10⁻20 और नीचे 16 हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ऊपर लिख दूँ एक तो 100 और नीचे 16 है। 2 जीरो, 20 में से 2 जीरो मैंने 100 लिखने में ले लिए, तो ये 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 16 6 जा 96। ठीक है, 96 पॉइंट, अब 96 जाएंगे, इसमें से 4 बच जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। तो 16 2 जा 32 इंटू 10⁻18। लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.02 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 कूलाम चार्ज बनाते हैं। समझ में आ गई बात? इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलाम चार्ज बनाते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं और आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है जरा वो भी देख लें। हाउ मच एनर्जी इज, देखिए दिखाई दे रहा होगा अब आपको, अब दिखाई दे रहा होगा प्रश्न। ये मैंने क्वेश्चन लिया है पेज नंबर 202 से। ये भी एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 202 पर भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए पेज नंबर 202 पर ये 3 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न बता दीजिए, पहले आंसर दे दें सारे प्रश्न। पहले प्रश्न क्या कह रहा है? नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। बताइए क्या होता है? यस गुड, क्या होता है? वोल्ट मीटर। अभी मैंने एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बताया था ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है? मेंटेन करता है। सॉरी आंसर मैंने गलत बता दिया आपको। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मेजर करने का नहीं कह रहा है। क्या नहीं कह रहा है? मेजर करने का नहीं कह रहा है। सॉरी बेटा। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन, उस डिवाइस का नाम बताइए जो मेंटेन करता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। यानी ये वायर है, इस वायर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेंटेन करना है, पैदा करना है। तो क्या करूंगा मैं?
इस वायर को किससे जोड़ दूंगा, बैटरी से जोड़ दूंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। क्या हो जाएगा बेटा, बैटरी। बैटरी तो होता है, जैसे ये वायर है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मान लीजिए ए भी एक वायर है। अब इसके ए और बी के बीच में आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, तो आप ए और बी को किससे जोड़ दो, एक बैटरी से जोड़ दो या सेल से जोड़ दो। तो ये लीजिए, अब ये हाई पोटेंशियल पर हो गया, ये लो पोटेंशियल पर हो गया। तो इस तरीके से बैटरी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन पूछता नेम ए डिवाइस दैट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, उस डिवाइस का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तब आता कौन, वोल्ट मीटर का नाम। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, पहला क्लियर हो गया। दूसरा, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। इस ऐसा कहने का मतलब क्या है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ऐसा कहने का मतलब क्या है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम होता है। यानी 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में यदि 1 जूल वर्क करना पड़े, इफ द वर्क डन इज 1 जूल इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, in carrying a unit charge from infinity to any point. So if 1 joule work is done in carrying a unit charge from infinity to any point is known as 1 volt. ठीक है, तो 1 वोल्ट वह पोटेंशियल डिफरेंस है जब किसी एक कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़े। ये भी मैंने लिखवाया हुआ है, आप वहां से लिख सकते हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न, कोई भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूं मैं बेटा, सारे प्रश्न आपको सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, मतलब कितनी एनर्जी दी जाए, किसके लिए, ईच कूलाम ऑफ चार्ज के लिए, जो कि पास हो रहा है कहाँ से, 6 वोल्ट बैटरी से। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या कह सकते हैं हम, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज ऑफ बैटरी कितना है, 6 वोल्ट है। ये वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, पोटेंशियल डिफरेंस को, 6 वोल्ट है ये। ठीक है, क्लियर है। चलिए, V का मतलब वोल्ट होता है, इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क डन। तो ये कितना होगा ये निकालना है। टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज, यानी ईच कूलाम का मतलब चार्ज का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 कूलाम। ईच कूलाम, प्रत्येक कूलाम के लिए, यानी Q का वैल्यू क्या दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है। समझ में आ गई बात, Q का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है। तो अब कौन सा फॉर्मूला बेटा लगेगा यहाँ पर, तो ये वाला लग जाएगा भाई, जिस फॉर्मूले में पोटेंशियल भी आ रहा है, वर्क डन भी आ रहा है, चार्ज भी आ रहा है, तो वो फॉर्मूला लगेगा। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, या फिर लिख सकते हो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ऐसे लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 1, ठीक है, 1 कूलाम है, और V की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट है, तो ये 6 आ जाएगा। 6 इंटू 1 कितना है, 6, यानी कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 6 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 6 जूल एनर्जी। एक चार्ज को 6 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि 6 वोल्ट बैटरी से पास होने के लिए एक चार्ज को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 6 जूल। तो ये कुछ प्रश्न थे जो अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, उनके ऊपर बेस्ड थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, ओम्स लॉ। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटा, वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इस नाम के वैज्ञानिक थे, कौन थे, जॉर्ज साइमन ओम। इन वैज्ञानिक ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन दिया था। किसके बीच रिलेशन दिया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन दिया, जिसे क्या कहा गया, ओम्स रिलेशन या ओम्स लॉ कहा गया। अब वो रिलेशन क्या था, वो बात हम कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो जॉर्ज साइमन ओम थे बेटा,
इन्होंने क्या किया, एक लिया वायर, क्या लिया, वायर, ये वायर, ठीक है, कॉपर वायर मान लीजिए, जिसका अपना कुछ रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। तो ये एक वायर लिया उन्होंने, ठीक है, और इस वायर के दोनों एंड से के अक्रॉस एक क्या जोड़ दी बैटरी, बेटा बैटरी जोड़ दी। ये देखिए इस तरीके से एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है, बैटरी जोड़ दी और एक की लगा दी। इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया उन्होंने। करंट को मेजर करने के लिए उन्होंने एक एमीटर लगा दिया, ठीक है, और करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए उन्होंने एक रियोस्टेट लगा दिया। क्या लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया। समझ गए। तो ये तो थी की, ये थी की जिसे हम स्विच कहते हैं। अभी ये कौन सा स्विच है, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बताए थे कंपोनेंट के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल बताए थे। तो ध्यान कीजिए कौन सा की है, ये ओपन की, जिसे ओपन स्विच भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बैटरी। कितने सेल्स हैं इस बैटरी में, 1 2 सेल्स की बैटरी है, ठीक है। अब देखना जरा, बैटरी का ये वाला जो टर्मिनल है जिसको पॉजिटिव हम कह रहे हैं, ये यहाँ से जुड़ा है। तो ये वायर का जो ये एंड होगा ये है वायर, ठीक है। कैसा वायर, मेटेलिक वायर, जिसे आप क्या कह रहे हो, कंडक्टर। इसी वायर को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर भी कहते हैं बेटा। वायर को ही कंडक्टर कहते हैं। मेटेलिक वायर जो है इसी को हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लो। कैसे, ये है मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर, ठीक है। और इसी मेटेलिक वायर को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख लो, ये एक मेटेलिक वायर है और इसी वायर को हम क्या नाम देते हैं, कंडक्टर नाम देते हैं, ठीक है। मैं ध्यान करिए, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सेमी कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। सेमी कंडक्टर भी होते हैं बेटा, जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। जब किसी वायर का टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो जो सेमी कंडक्टिंग वायर है वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही उस सेमी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा किया जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उस सेमी कंडक्टिंग वायर के पास कंडक्टिविटी आती चले जाती है, यानी वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो ऐसे सेमी कंडक्टिव वायर जिसका व्यवहार कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह की हो उन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर, सेमी मतलब आधा कंडक्टर, हाफ कंडक्टर, जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह व्यवहार करे वो सेमी कंडक्टर होता है बेटा। लेकिन हम यहाँ सेमी कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, हम तो यहाँ केवल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यानी जो जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट इजीली फ्लो हो जाए, जिससे चार्ज का फ्लो इजीली हो जाए, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो इस वायर का ये वाला सिरा मैंने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, और पॉजिटिव का मतलब आप सब जानते हो हाई पोटेंशियल होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल, सब जानते हो। और देखना जरा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, की से होते हुए, रियोस्टेट से होते हुए, ये है रियोस्टेट। याद करो, मैंने कंपोनेंट्स के सिंबल में लिखवाया था रियोस्टेट, और इसका दूसरा नाम जल्दी से मुझे बताओ। यस, क्या होता है, क्या है इसका दूसरा नाम, वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर भी इसे हम कहते हैं। वेरिएबल रजिस्टर को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो लगा के, ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। और ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, की से होते हुए, रियोस्टेट से होते हुए, एमीटर से होते हुए वायर के इस एंड पर जा रहा है, यानी वायर का ये जो एंड है ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है बैटरी से, तो ये लो पोटेंशियल पर होगा। किस पर होगा, लो पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। और बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के दोनों सिरों के बीच पैदा कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया ना बैटरी ने दोनों वायर सिरों के बीच में, देखिए ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है, तो वायर के दोनों सिरों के बीच क्या पैदा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। मान लीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी ने वायर के दोनों सिरों के बीच पैदा किया है वो कितना है, V है। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, V है, जो इस बैटरी ने इस वायर के दोनों सिरों के बीच पैदा किया है।
अब ये पोटेंशियल V होगा या नहीं होगा, इसे मेजर करने के लिए हम इस वायर के पैरेलल में, हम नहीं, किसने, ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने वायर के पैरेलल में क्या जोड़ दिया, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। समझ गए? तो ये था वोल्ट मीटर, ये था वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये जो ए है ये है एमीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए लगाया है, सीरीज में जुड़ता है सर्किट में, तो देखो सीरीज में जुड़ा हुआ है एमीटर। और वोल्ट मीटर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, इसलिए, और ये पैरेलल में जुड़ता है, तो देखो पैरेलल में जोड़ा है मैंने। इस वायर के दोनों सिरों के बीच में ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया, इस सिरे से और इस सिरे से, तो ये पैरेलल हुआ इस वायर के, ठीक है, कंडक्टर के। तो ये अरेंजमेंट किया, और इस अरेंजमेंट को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं बेटा। जो वायर मैंने ऊपर बनाया है, ऊपर तो मैंने पूरा वायर दिखा दिया है, अब इस वायर को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ठीक है। और इसके अक्रॉस जोड़ दिया उन्होंने वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वायर है, क्या है, मेटेलिक वायर, जिसे आप कंडक्टर कह रहे हो। क्या कह रहे हो, कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ क्या जोड़ा आपने, एमीटर जोड़ा, ठीक है। और यहाँ क्या जोड़ा फिर आपने, यहाँ जोड़ी एक बैटरी 2 सेल की, ठीक है। ऊपर वाले ही डायग्राम को दोबारा से मतलब मैंने कंडक्टर को अब इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। और यहाँ जोड़ा उन्होंने क्या, यहाँ पर एक की लगाई और की से फिर एक रियोस्टेट जोड़ दिया, ये रियोस्टेट जोड़ दिया RH, ठीक है। और ये की, ठीक है। और ये बैटरी, ये क्या है, बैटरी। बैटरी ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के दोनों एंड के बीच पैदा किया, V, ठीक है। जैसे ही की को क्लोज करोगे, जैसे ही की को क्लोज करोगे, तो आप चाहे ऊपर वाला डायग्राम बना दो चाहे नीचे वाला, एक ही बात है, कोई एक बनाना है आपको, ठीक है। तो चलो हम एक डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने दोनों डायग्राम में क्या अंतर बताया, यहाँ पर मैंने वायर को इस तरीके से बनाया है, यहाँ पर इस तरीके से बनाया है। इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे। वैसे ये कैपिटल R यानी रेजिस्टेंस होता क्या है, ये रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो में जो बाधा होती है, चार्ज के फ्लो में जो बाधा पैदा होती है, उसे हम उस वायर का रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। वायर का रेजिस्टेंस कहते हैं। यदि वायर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, वायर पतला है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। वैसे ही जब आपकी छुट्टी होती है तो आपके क्लासरूम का यदि दरवाज़ा बहुत पतला सा है, ठीक है, तो उसमें से निकलना बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि सब लोग पहले निकलना चाहेंगे। तो जब छोटा सा पतला सा दरवाज़ा है तो निकलने में परेशानी होगी, और जब वही दरवाज़ा बड़ा हो तो निकलने में एकदम आसानी हो जाती है। तो रेजिस्टेंस कम हो गया बड़ा होने पर, यानी वायर मोटा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, वायर पतला होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। लेकिन केवल और केवल मोटा और पतला होने से हम रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा नहीं कह सकते, और भी पैरामीटर्स हैं, लेंथ पर भी डिपेंड करता है जो रेजिस्टेंस वायर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। ये रेजिस्टेंस R है, जिसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। चलो इसकी बात हम बाद में कर लेंगे। ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया पैरेलल में, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और करंट मेजर करने के लिए एमीटर जोड़ दिया। अब देखो जरा बेटा, इसमें जैसे ही आपने की को क्लोज किया, जैसे ही आपने की को क्लोज किया, अब क्या हो जाएगा, इस वायर के दोनों एंड के बीच, जब तक की क्लोज नहीं थी तब तक तो इस वायर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही की को क्लोज किया तो ये जो एंड है वायर का, ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ गया, और जुड़ते ही यहाँ पर लो पोटेंशियल और यहाँ हाई पोटेंशियल, तो वायर के दोनों सिरों के बीच क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और वायर में कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वायर में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान करो मैंने बताया था। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं, लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल एंड की तरफ, तो इस तरफ जाना शुरू कर देंगे, फ्लो होना शुरू कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो होंगे लो पोटेंशियल एंड से हाई पोटेंशियल एंड की तरफ, तो वायर में क्या डेवलप हो जाएगा, करंट डेवलप हो जाएगा। और वो करंट, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो होते हैं तो करंट इनके अपोजिट जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे आ रहे हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और करंट ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो मान लेता हूँ इस वायर में फ्लो होने वाला करंट I है, I करंट इसमें डेवलप हो गया, और ये करंट का डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट जो डायरेक्शन होता है वो करंट का डायरेक्शन लेते हैं। इसी डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, जो डायरेक्शन करंट का होता है। पहले मैंने आपको समझाया हुआ है कि करंट कैसे डेवलप होता है।
ठीक है, तो ये करंट डेवलप हो गया। अब उन्होंने देखा कि जब इस रियोस्टेट से जॉर्ज साइमन ओम ने ये पूरा अरेंजमेंट कर लिया अपनी लैब में, ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ दिया और ये सर्किट डायग्राम बना लिया, इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो ये ओम्स जॉर्ज साइमन ओम ने इतना अरेंजमेंट करने के बाद में उन्होंने क्या किया, इस रियोस्टेट से वायर के रेजिस्टेंस को बदला। जब इस रियोस्टेट को इधर उधर करते हैं, इसकी ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को इधर उधर मूव किया जा सकता है इस रियोस्टेट पर। तो जब इसको इधर उधर मूव करते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस बदलता है। सर्किट का क्या बदलता है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बदलेगा। और जब रेजिस्टेंस बदलेगा तो सर्किट में करंट की वैल्यू बदल जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बदल जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बदल रहा है वो वोल्ट मीटर बता देगा, करंट कितना बदल रहा है वो एमीटर बता देगा। तो इस तरीके से जॉर्ज साइमन ओम ने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट नोट किए कि अलग अलग वोल्टेज पर, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट का वैल्यू कितना आता है वो उन्होंने नोट किया और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए। कैसे लिए, इस रियोस्टेट को आगे पीछे खिसका करके पहले एक जगह रखा तो देखा कि वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग है और एमीटर में कितनी रीडिंग है। फिर दूसरी जगह खिसका दिया रियोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, तो फिर देखा कि वोल्ट मीटर में रीडिंग बदल गई है तो उसे नोट कर लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग एमीटर में कितनी रीडिंग है वो नोट कर लिया उन्होंने। फिर तीसरी जगह रखा। ऐसे रियोस्टेट को अलग अलग जगह मतलब उसके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को अलग अलग जगह किया उन्होंने, खिसकाया और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ले लिए उन्होंने। फिर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस लिए थे वो कुछ इस तरीके से आए थे। उन्होंने एक बनाई थी बेटा टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल जिसे हम कहते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल। ये तो हो गया बेटा, ये तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया किसका, ओम्स लॉ का। अभी मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये अभी मैंने आपको बताया कि ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने अपनी लैब में कैसा सर्किट अरेंजमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया। अब मैं ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन टेबल में एक सीरियल नंबर, ये एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करना भी है। अभी आप ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन ओम्स लॉ अवेलेबल है, मैं भी आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। वैसे आप ओम्स लॉ को ऑनलाइन देखना, ओ लैब पर जाकर के आप देख सकते हो। ओ लैब गूगल पर टाइप कीजिएगा तो उसमें फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स क्लास वाइज अवेलेबल है, वहाँ पर आप देखना, ठीक है। तो सीरियल नंबर लिया पहले में। दूसरे में उन्होंने वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग को उन्होंने क्या लिखा, वोल्ट मीटर रीडिंग को, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम वही लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर रीडिंग होगी। और किस में आएगी, ये वोल्ट में आएगी। एक बार यहाँ लिख देते हैं और इधर क्या ले लेते हैं, करंट, करंट, करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। और तीसरा उन्होंने जो कैलकुलेट किया वो था रेजिस्टेंस। क्या निकाला, रेजिस्टेंस, जिसको उन्होंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया और उसको लिखा V अपॉन आई। रेजिस्टेंस को क्या लिखा बेटा, B अपॉन आई, ये B अपॉन आई है बेटा, ठीक है। मैं अलग से अच्छे से लिख देता हूँ इसको, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, दिखाई दे रहा है, या ऐसे लिख सकते हो अलग से, इस तरीके से लिखना है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। और इसका यूनिट क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम, जिसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ओम को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी बाधा है चार्ज के फ्लो में, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी वैल्यू देगा वो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी B। और जो करंट मेजर किया जाएगा वो किससे मेजर करेंगे, एमीटर से, I आ जाएगा, V और I आ जाएगा तो R निकाल लेंगे V अपॉन आई से। तो फिर उन्होंने देखा, पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया कि जब जीरो वोल्टेज है तो करंट भी जीरो है, उन्होंने देखा। दूसरा, उन्होंने वोल्टेज को फिक्स किया 1 पर, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि करंट 0.5 हो गया। तीसरा, उन्होंने वोल्टेज को फिक्स किया 2 वोल्ट पर, तो देखा कि करंट 1.0 हो गया। फिर चौथा, उन्होंने वोल्टेज को बदला, कितने पर फिक्स किया, 3 पर, 3 वोल्ट पर, तो देखा कि जो करंट है
वो 1.5 हो गया। फिर पांचवा उन्होंने वोल्टेज को फिक्स किया 4 वोल्ट पर, तो देखा कि करंट कितना हो गया, 2 हो गया। करंट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए। छठा ऑब्जर्वेशन लिया 5, जब वोल्टेज को 5 रखा तो उन्होंने देखा कि करंट 2.5 हो गया। ठीक है, फिर इनसे रेशो निकाल लिया, आर का वैल्यू निकाल लिया। भाई V अपॉन आई करते जाओ, 0/0 0 आ जाएगा। 1/0.5 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 ओम आएगा ना, 1/0.5, 1/0.5, तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। 2/1.0 तो 2 आ जाएगा। V अपॉन आई करते जाओ, 3/1.5 तो 2 ही आएगा, आएगा या नहीं। और 4/2 2 ही आएगा। 5/2.5 2 ही आएगा। तो ये जीरो वाली रीडिंग हमें वैसे लेनी नहीं होती है, वैसे हमने यहाँ पर ले ली। तो जीरो वाली आप नहीं भी लें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो वाली नहीं भी लें तो चलेगा, इस जीरो वाली को रहने देना। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बाकी जगह तो 2 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो जीरो वाली रीडिंग ना लें तो ज़्यादा बेटर है। तो देखना जरा, ये 2 कैसा आ रहा है, एक जैसा आ रहा है ना, सबका कांस्टेंट आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज बदलने पर करंट सेम रेशो में बदल रहा है। भाई वोल्टेज को आपने 1 से बढ़ाया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, सेम रेशो में बढ़ाया ना वोल्टेज को आपने, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो करंट भी सेम रेशो में बढ़ रहा है। 0.5 था, फिर 1 हो गया, फिर 1.5, यानी 0.5 के अंतर पर ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इनका जो रेशो है वो भी तो कांस्टेंट आ रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये भी यहाँ से पता चल रहा है। अब इसको उन्होंने ग्राफ के रूप में देखा। जब देखिए पोटेंशियल और करंट, पोटेंशियल में 1 का चेंज आ रहा है और करंट में 0.5 का चेंज आ रहा है पोटेंशियल बदलने से। जब उन्होंने इसको ग्राफ पर प्लॉट किया, जब उन्होंने इसको ग्राफ पर प्लॉट किया, जब ग्राफ प्लॉट किया इन्होंने, किसने, जॉर्ज साइमन ओम ने जब ग्राफ प्लॉट किया, कैसे प्लॉट किया ग्राफ, देखो जरा। ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने, ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ में उन्होंने, ग्राफ प्लॉट करना सब बच्चों को आता होगा। उन्होंने इधर लिया वोल्टेज, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको और क्या नाम दे रहे हो आप, वोल्टेज। ये तो ले लिया एक्स एक्सिस पर, किस में मेजर किया जा रहा है, ये वोल्ट में। ठीक है, और इधर उन्होंने लिया वाई एक्सिस पर, ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जानते हो आप। इधर लिया उन्होंने क्या, करंट। क्या लिया बेटा इन्होंने, करंट, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हो, और यूनिट क्या है करंट का, एम्पियर, ये सब जानते हो। अब यहाँ पर वैल्यूज लिखी। वोल्टेज क्या क्या लिए थे उन्होंने, 0 रखा, फिर 1 लिया था। तो स्केल ले लेते हैं ना, एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 वोल्ट मान लेते हैं। तो दूसरे बड़े खाने पर 2 वोल्ट, तीसरे बड़े खाने पर 3 वोल्ट, चौथे बड़े खाने पर 4 वोल्ट, पांचवें बड़े खाने पर 5 वोल्ट, छठे बड़े खाने पर 6 वोल्ट, सातवें बड़े खाने पर 7 वोल्ट। इस तरीके से लिख दिया उन्होंने, यानी एक बड़ा खाना 1 वोल्ट के बराबर, ऐसे स्केल उन्होंने मान लिया। तो एक्स एक्सिस पर जो स्केल लिया उन्होंने, एक्स एक्सिस पर उन्होंने स्केल जो लिया, स्केल लिखना होता है ग्राफ पर, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या स्केल लिया कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 बिग ब्लॉक। और ग्राफ में एक जो बड़ा खाना होता है वो किसके बराबर होता है, आप सब जानते हैं, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। तो अब उन्होंने वाई एक्सिस पर क्या लिया, वाई एक्सिस पर क्या लिया, करंट लिया। करंट पर एक बड़ा खाना 0.5 एम्पियर, फिर दूसरा बड़ा खाना 1 एम्पियर, फिर तीसरा बड़ा खाना 1.5, फिर चौथा बड़ा खाना 2, फिर पांचवा बड़ा खाना 2.5, फिर छठा बड़ा खाना 3, फिर सातवां बड़ा खाना 3.5। इस तरीके से 0.55 का डिफरेंस था। तो एक बड़ा खाना कितने के बराबर हो गया, 0.5 एम्पियर के। तो 0.5 एम्पियर एक बड़ा खाना, यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर। ये वाई एक्सिस का स्केल आ गया। अब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेबल देखा कि 0 पे तो 0 है, चलो 0 है, 0 पे तो 0 है, तो ये पॉइंट तो यहीं आ जाएगा, ये आ गया 0। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा पॉइंट उन्होंने देखो क्या किया, 1 लिया। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 है तो करंट कितना है, 0.5। तो देखो जरा, ये है पोटेंशियल डिफरेंस 1, तो इधर से ये लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ऐसे।
और ये है 0.5 करंट, इधर से लाइन ड्रॉ की तो दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट आ जाएगा। जब फिर उन्होंने पोटेंशियल 2 वोल्ट लेने पर करंट कितना आ रहा था उनका 1 एम्पियर। देखना जरा, पोटेंशियल जब 2 वोल्ट लिया तो करंट कितना आ रहा था 1 एम्पियर। तो जब पोटेंशियल को उन्होंने 2 वोल्ट किया तो यहाँ से लाइन ड्रॉ की, पोटेंशियल को 2 वोल्ट किया, ठीक है, और तो करंट कितना आ रहा था 1 एम्पियर। तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। जब पोटेंशियल उन्होंने 3 वोल्ट लिया, जब पोटेंशियल उन्होंने 3 वोल्ट लिया, ये 3 वोल्ट पोटेंशियल लिया तो करंट 1.5 आ रहा था, तो ये वाली लाइन पॉइंट आ जाएगा, आ गया। जब उन्होंने वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट लिया तो करंट 2 एम्पियर आ रहा था। करंट कितना आ रहा था 2 एम्पियर, करंट कितना आ रहा था 2 एम्पियर, तो यहाँ आया पॉइंट। जब उन्होंने पोटेंशियल को 5 वोल्ट लिया, जब उन्होंने पोटेंशियल को 5 वोल्ट लिया तो करंट कितना आ रहा था 2.5, करंट कितना आ रहा था 2.5। इस तरीके से ये पॉइंट आए और इन सभी पॉइंट्स को उन्होंने मिलाया तो देखा कि क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने का मतलब ये जो आई है ये वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया आपका वी और ये हो गया आई, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका मतलब इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर जो भी कुछ होगा वो एक्स एक्सिस पर जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्या निकल के आया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी आई और वी में जो चेंज होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा इस ग्राफ के बाद में, फिर उन्होंने ओम ने अपना स्टेटमेंट दिया। क्या कहा उन्होंने, स्टेटमेंट दिया, क्या कहा उन्होंने अपने ओम्स लॉ में, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ बता रहा हूं। एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ the potential difference sorry as per Ohm's law the electric current is, इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर, ठीक है। एज पर ओम्स लॉ द करंट, करंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से, ठीक है। एज पर ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference we maintained across the ends of a conductor। कंडक्टर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंटेन हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, करंट, ठीक है। और ये कब तक होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अनलेस